है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशे की तलाश करो। और इसी तलाश को करने के लिए निकले हुए हैं कोई और नहीं, खुशहाल कौशिक जी। Now I would like to invite Shri Kushal Kaushik, founder and CEO of Lishanthis Tech and Vice President CSAI, for theatrical address. Kushal Kaushik ji is the founder and CEO of Lishanthis Tech. Kushal is the first Indian cyber security expert featured in UNESCO in 2018, and his second research paper was published by UNESCO in Feb 2021. He has been recognized and described as India's future of cybersecurity in prominent media publication by a former US Department of Defense veteran, and was also awarded the Glory of India Award 2020. Kushal ji, I am going to discuss more about in detail in Cyber Surakshit Bharat. Cyber Surakshit Bharat is an initiative launched by the government of India to educate every individual, government agencies as business owner about the cyber security. Also, government India want to focus on Cyber Surakshit Bharat to train more and more people regarding about the right technology, right tool, so that how the people can protect themselves before hacks. So, being an Indian ethical hacker, I found some challenges and issues regarding Cyber Surakshit Bharat, and I will also describe which APT groups are carrying out cyber attacks against our country, from China, Pakistan, Bangladesh, and some other Western countries. 20,000 करोड़ रुपए बटन दबाकर उनके खाते में पहुंचा दी। बताइए, यदि कल साइबर सिक्योरिटी नहीं हो, एकदम अचानक साइबर अटैक आ जाए, क्या किसानों के पास पैसा पहुंच सकता है? ऐसे ही राष्ट्रीय सुरक्षा, हमारे देश के अंदर हम आत्मनिर्भर भारत बन रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में हम मिसाइल बना रहे हैं, हम बड़े बड़े युद्ध में काम आने वाले हथियार बना रहे हैं, वो सबका डिजिटलाइजेशन हो गया है। चाहे परमाणु बम की बात करें, यदि आज की तारीख में साइबर अटैक होता है तो ये सब संस्थान एक तरीके से ठप हो जाते हैं। इसलिए आज की आवश्यकता है साइबर सिक्योरिटी। मुझे कहते हुए बहुत गर्व कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस दिशा में बहुत क्रांति लाए हैं इस देश के लिए, सिस्टम सुरक्षित रहे। इसके लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत आवश्यक है। आप सब लोग इसमें बैठकर विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। आप इस दिशा में आगे बढ़ते जाइए, ये देश के लिए बहुत हितकारी है। कुशाल जी, आपको बधाई देता हूँ और इस कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी मित्रों को मैं बधाई देता हूँ। एक बार फिर क्षमा चाहता हूँ कि मैं इस समारोह में उपस्थित नहीं हो पाया, मेरी बड़ी इच्छा थी। आप सबको प्रणाम, धन्यवाद। It may bring down the entire infrastructure for public utilization. Second most important factor for cybersecurity, or is widely discussing, is that it's a financial gain for somebody. This financial gain is where I think the organizations will be more prompt to understand that what is my loss if this I lose, if this information is lost, if this information is stopped by use by my. डॉक्टर एस के धर्मेंद्र जी, धन्यवाद आपका। एयर मार्शल जी बेदी जी, अंशुमन त्रिपाठी। What are the challenges that you face on a day-to-day basis? Looking forward to hearing from you. Thank you, Vinit. This is a very nice question, very relevant. Nowadays, everywhere you find you are under surveillance. You are under surveillance. What type of surveillance? So mostly you will find everywhere the CCTV cameras, everywhere if you are running mobile, then you are under surveillance, or your data will be saved, right? So what you said, actually the problem is that where is the data? So if I need data from the social media or whatever, there is a problem. You will not find, it's not easy job to get the information of data. Who is handling, who send, who write all these things. Because even data centers has kept his or her identity. So in virtual world, we are in physical world, we are talking to virtual world, and the other one the physical world. Those who are involved in thefts and misinformations, disinformations, all have many
handles many accounts and many fake accounts. So this way you can't access to या प्रधानमंत्री के निवास से होता है। जहां से ये लड़का कौशिक है वो भोरसी है। 1983 में भोरसी में माननीय चंद्रशेखर जी ने उसको एक ट्रस्ट बनाया, भारत त्यागरा केंद्र, और देश के प्रधानमंत्री 90 और 91 में वो प्रधानमंत्री रहे, और वहां पर दुनिया का कोई ऐसा हेड ऑफ द स्टेट नहीं था कि जो वहां नहीं गया, और वहां पर वो प्रधानमंत्री निवास भी रहा और निवास अनाउंस हुआ, और जब तक प्रधानमंत्री थे एक दिन भी वो रेस्ट कोर्स में नहीं सोए, प्रधानमंत्री निवास भोरसी में सोए। उन्होंने कहा था कि भोरसी फिर दुनिया के नाम पर रहेगा, और ये जो नया संविधान शुरू हुआ है वो भोरसी से हुआ है। 1983 में जो हम गए थे तो भोरसी में 5 आदमी के लिए खाने के लिए गांव में कोई प्रबंध नहीं हो सका था। वहां की उस समय गरीबी किया है किए हैं, तो हमें लगता है कि हम इसको अचीव कर पाएंगे, और किस तरह से हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करे कि हम इसको एक प्रॉपर वे में आगे बढ़ पाएँ और इससे हम बच पाएँ। तो बिल्कुल मैम, देखिए वेरी फैक्ट कि आपने सेशन या सेमिनार ऑर्गेनाइज किया, इसका मतलब है कि हम इसके बारे में सोच रहे हैं। ज़रूरत है सिर्फ इसको सही तरीके से पहचानने की कि इसमें क्या थ्रेट्स हैं, कैसे उनको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम अपने आप को ऐसे रखेंगे भ्रम में कि हम बिल्कुल ठीक हैं, हम बिल्कुल सिक्योर्ड हैं, हमें कोई खतरा नहीं है, तो ऑनरेबल खुशहाल कौशिक जी, आपको बहुत बहुत बधाई इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम करने के लिए। एंड मेरी शब्द कम पड़ रहे हैं बधाई के लिए, क्योंकि अमिताभ कांत G20 शेरपा इस प्रोग्राम में शिरकत किया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि उस तरह की हस्ती यहाँ पर मौजूद होना और कमिटमेंट देना। वो कमिटमेंट क्या है उनके कि हमने जो इस प्रोग्राम को किया, 2 टेक्निकल सेशन किए, इतने बड़े बड़े हम लोगों ने हस्तियों को यहाँ बुलवाया और उन्होंने मंच पर आके सारा डिफाइन किया इस चीज़ को, साइबर थ्रेट के ऊपर कि किस तरह से भारत आने वाले समय में सुरक्षित हो सकता है साइबर थ्रेट से। तो उनका जो मैसेज था वो मैसेज एक बार दर्शकों को आप बताएं कि किस तरह से वो हमारे इस मैसेज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आप आए और आपने इतनी अच्छी मॉडरेशन की है, सबको कोऑर्डिनेट किया। और रही अमिताभ कांत साहब की बात, वो हमारे गुरु हैं और हम उनके मार्गदर्शन पर चलते हैं। तो बस मैं उनको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और वो हमारी इवेंट में चीफ गेस्ट बन के आए। तो अमिताभ कांत साहब का ये कहना था कि भारत डिजिटलाइज रूप में सबसे आगे बढ़ रहा है, अगर आपको ग्रो करना है तो आपको डिजिटलाइजेशन के साथ में जाना होगा, और उस तकनीकी रूप में आपको आगे बढ़ना है तो आपको साइबर सुरक्षा को भी पहल देनी होगी, आपको अवेयरनेस को आगे बढ़ाना होगा। तो काफ़ी कुछ चीज़ों पे उन्होंने डिस्कस किया। हमने UPI पे उन्होंने किया कि अगर मैं पेरिस में एफएल टावर पर हूँ, अगर मुझे किसी को पेमेंट करनी है तो मैं इंटरनेट के माध्यम से और UPI के थ्रू आई कैन मेक दी पेमेंट। तो ये उन्होंने किया। तो बाकी उन्होंने हमारे सुझाव लिए, बाकी उन्होंने किया, बाकी रिपोर्ट हमारी लेके गए हैं और ESET की वो इसके ऊपर तो हम बात करेंगे। आई विल टेक इट फॉरवर्ड। सर, इतना पैक शेड्यूल चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ऑनरेबल विजय वर्गीय जी, विजय साहब को आपने इनवाइट किया इस प्रोग्राम के अंदर, कैलाश विजय वर्गीय जी को, और वो नहीं आ पाए तो उन्होंने ऑनलाइन आके जुड़े। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसमें ये है कि आप रियली में सोसाइटी के लिए एंड भारत को सुरक्षित करने के लिए आप कदम उठा रहे हैं। तो कैसा देखते हैं इस बात को कि उनका मैसेज इतना पैक शेड्यूल होने के बाद भी वो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े? देखिए, कैलाश जी सबसे पहले इसके लिए इन्वाइटेड थे। हाँ। और सबसे पहले कन्फर्मेशन थी। हाँ। तो बस ये जो माहौल था, उनकी कैबिनेट मीटिंग आ गई और वो हमारे लास्ट इवेंट में भी थे और मेरे हर इवेंट में भी वो रहेंगे। तो बस मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी बात एक मैं उनके छोटे बालक की तरह हूँ, तो उन्होंने मेरी बात मानी और वो अपनी मीटिंग को क्लोज करके और एक मेरे लिए ऑनलाइन सेशन उन्होंने अटेंड किया। तो मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है। तो मेरे लिए क्या, जो भी यहाँ श्रोता थे, जितने भी गेस्ट थे, सबके लिए बड़ी बात है, क्योंकि एक गवर्नमेंट के आदमी, सीनियर लीडर ने आके अपनी बात रखी, लोगों को समझाया, क्या किया। तो मैं उनके लिए मैं सबसे जो जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है।
थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि इस तरह के प्रोग्राम आप करते रहें और साइबर थ्रेट जो आ रही है और आने वाली पीढ़ियों को बहुत प्रॉब्लम होगी तो उसको हम अभी से सुरक्षित कर लें, और आपने जो ये पहल की है ये बहुत बड़ी बात है। आने वाले का जिसने साधन बनाए, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, इंसान को जिंदा रहने के लिए जो चाहिए वो नेचर के पास है। जो नेचर के पास है अगर वो ना मिले तो ना इंसान जी सकता है ना कुछ कर सकता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जी जी जी। देखिए फिर आपका बड़ापन आ गया, मीन्स बात शुरू हुई नहीं कि आपका जो कहते हैं ना कि बयां अंदाज जो आ रहा है वो मुझे लगता है वार्ता करने में काफ़ी सक्षम रहेगा। जी किया ऑनरेबल अमिताभ कांत साहब को आपने यहाँ बुलवाया, इतना टाइट पैक शेड्यूल होते हुए भी आपने कैलाश विजयवर्गीय जी को ऑनलाइन ले लिया, तो ये ऐसी कैसी एनर्जी इस देश के लिए आपके अंदर है कि आप इतना बड़े लोगों को यहाँ बुला के और एक बहुत ज़बरदस्त टेक्निकल सेशन आपने दिया जिससे बहुत कुछ आउटकम्स निकल के आए हैं, इवन हमारी बात गवर्नमेंट तक आप पहुँचा रहे हैं। तो इसके ऊपर हमारे दर्शक और ओएसिस न्यूज़ के दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि ये कौन सी जादू की छड़ी आपने घुमाई है। देखिए पूरे हिंदुस्तान में जितने प्रोग्राम, पूरे संसार में जितने प्रोग्राम्स होते हैं उसमें से 99.999% इंडस्ट्री के स्पॉन्सर्ड होते हैं। यस। हमारे एसोसिएशन CMAI, टीमा, CSAI जिसके मेंबर्स 48,500 हैं, 74 कंट्री से MOU पार्टनरशिप है, 47 वेबसाइट्स हैं, 27 एसोसिएशंस हैं, 1 लाख कॉलेज से जुड़े हुए हैं। उसके बावजूद हमारे किसी इवेंट में किसी भी इंडस्ट्री वाले का कोई योगदान पैसे के तरह से नहीं होता। क्या बात है। माइक्रोसॉफ्ट आया था हाँ। लेकिन पैसे नहीं दिए। अरे तो क्योंकि हम ऑरेकल भी था, माइक्रोसॉफ्ट भी था, हाँ। और भी बहुत लोग थे। क्योंकि हम पैसे नहीं मांगते तो हमें फ्रीडम होती है, हम जो चाहे वो बात कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और ये स्ट्रेंथ आज से नहीं है, ये स्ट्रेंथ हमारी 54 ईयर्स से है। अच्छा। जब से हम इवेंट्स कर रहे हैं। AI जो है वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, मीन्स जिसको जिस चीज़ में पकड़ होगी वो AI को उस तरह से यूज़ करता है। तो कैसे आप देखते हैं कि ये साइबर सिक्योरिटी में किस तरह का रोल प्ले कर रहा है? देखिए मेरा मानना ये है कि जो भी टेक्नोलॉजी नहीं आती उसका सदुपयोग भी है और उतना ही जो है वो गलत हाथों में चले जाए तो दुरुपयोग भी है। तो ये आधुनिक युग में जो जो चीज़ें अभी इंट्रोड्यूस हो रही हैं वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। ब्लैक साइड में हम देखें, डार्क साइड में देखें तो वो कहीं ना कहीं जो है दूसरे जो लोग और अपना जो है मोटिव गलत लेकर के बैठे हैं वो उसको